So there are certain kind of attachment style that we develop during our childhood, and the kind of attachment style that you're developing during your childhood because of the different parenting style, उससे आप that would depend कि how you're forming any kind of relationship in your adulthood. क्या डिप्रेशन होता है, एक थप्पड़ मारो वो ठीक हो जाएगा, एकदम ही डिसमिस कर देंगे, अवॉइड करेंगे कि रो मत मेरे सामने, चुप रहो, तुम्हें रोना नहीं है. Don't cry, don't cry, don't cry, don't. सबसे पहला वर्ड probably that comes to mind would be depression या ये पागल है. So मैं पागल हूँ what exactly is mental health? मतलब आप किसी को भी बोल दोगे कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, दिल भी लाइक वो रीड माई माइंड, बट इट इज सो मच मोर देन दैट. एवरीबडी इज गिविंग एडवाइस on social media platform about mental health. Don't be afraid of, unleashing that inner child. अभी आप उनको पूछोगे कि कब से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, इंसेक्ट्स की आवाज़, कुछ एक आवाज़, वो बताएंगे कि बचपन से मुझे लगा ये नॉर्मल है, उनके लिए वो नॉर्मल था, राइट? Do you believe in ghosts? I don't want to contradict. Hi, Afreen, how are you? Good, how are you? I'm good. So, people who are watching, this is Saida Afreen. She's a psychologist, and on the occasion of World Mental Health Day, we have called her to get some good insights on the mental health of India, of everywhere around the world. And let's see, you'll get to know a lot of things today. So, let's start with a quick introduction of yours. Super excited, Ayush, and thank you so much for this opportunity. My name is Saida Afrin. People often get confused. So was Ayush कि Saida बुलाओ कि Afrin बुलाओ. But Afrin is my name. Saida is my family name. I'm an MPhil clinical psychology trainee under Rehabilitation Council of India. Now my journey in mental health, it has been a long journey, but it all started with me convincing my parents to let me take humanities, क्योंकि उस जमाने में ऐसा था कि my parents were like कि आपको engineering ही करना है, तो science लो. But then I did a little bit of research, then I tried to convince my parents कि psychology is a mixture of social science and science. So technically I'm still studying science, to let me study science. So it all began with me taking humanities and psychology as a subject back in my 11th grade. And I was intrigued by this entire discipline because it's, as we say, मतलब आप किसी को भी बोल दोगे कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, दिल भी लाइक वो रीड माई माइंड, but it is so much more than that. It's about human behavior, it's about studying about somebody's experience, cognition, thinking pattern. तो and clinical psychology as a field that I am in right now, ये काफी, it's a service at the end of the day. You serve people, and I think I have always been that empathy in me was always there, and I did not see myself doing something like, no hate towards any engineers out there, but I did not see myself doing something which is concrete or studying physics and chemistry. I wouldn't understand, but studying about human emotions, studying about different experiments, social behavior, this always fascinated me so much. So yeah, that's about myself. That's amazing. So let's start with very basic कि what exactly is mental health? अगर किसी से पूछो they will be like सबसे पहला word probably that comes to mind would be depression या ये पागल है. So what exactly is mental health अगर layman terms में समझाना हो? एग्जैक्टली तो आजकल ये हो रहा है कि मेंटल हेल्थ खराब है, मेंटल हेल्थ ये है, तो लोग ये नहीं समझ रहे कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली बस एक डोमेन है. जैसे हम बोलते हैं ना फिजिकल हेल्थ अभी खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है. तो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस बोथ आर टू स्पेक्ट्रम, बट दे आर ऑल्सो लाइक ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स. तो हम पहले मेंटल हेल्थ को समझते हैं. मेंटल हेल्थ, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल में जाऊं, अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज. मतलब कहने का ये मतलब है कि आपके पास डिजीज नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंटल हेल्थ आपका अच्छा है. इट मीन्स कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ओवरऑल वेलबींग. तो whenever we are talking about mental health, we need to understand कि मेरा वेलबींग
इन द एरिया ऑफ सोशल एरिया कैसा है, मतलब आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सोशल जो भी एजेंट्स है आपके सराउंडिंग में, उनके साथ कैसा है, क्या ये सही अच्छा है, क्या उससे आपको दुख पहुंच रही है, क्या आपको खुशी हो रही है, इट्स अबाउट योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो वेलबींग कैसा है. सेकेंड एरिया इज योर पर्सनल, इट कैन बी पर्सनल, कि खुद के साथ आप कंफर्टेबल हो, क्या खुद से आपको सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम हो रही है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपको वेलबींग में बहुत दिक्कतें आ रही है, योर पर्सनल एरिया. एंड थर्ड कैन बी योर एजुकेशनल, अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर ऑक्यूपेशनल अगर आप काम कर रहे हो. ये तीन एरिया जो पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल मैंने बताया, ये तीनों एरिया में जब भी हमें दिक्कतें आ रही है, दैट इज द स्टेट ऑफ योर मेंटल हेल्थ not being all right. That is the wake up call that you can actually ask for help. And asking for help does not mean that you're directly approaching a therapist or directly approaching a mental health professional. It can be as simple as calling your friend. And इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रिटेल थेरेपी करो, शॉपिंग करने चले जाओ. नहीं, you need to be very mindful about these three aspects of your life because this overall defines your mental health. ठीक है, so that is all about mental health. So good mental health, it means overall well-being in my social area, in my occupational and personal area. Okay, overall well-being, it's not like absence of disease. अभी आते हैं mental illness. मेंटल इलनेस को हम अलग से समझेंगे बिकॉज ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है. जब आपकी मेंटल हेल्थ इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कि आप you are kind of at a state where you are not being able to focus on yourself. For example, let us take an example of eating disorder. इसमें हम लोग इन डेप्थ में भी जाएंगे कि आप खाना खा रहे हो, फिर उसके बाद आपको बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि अरे स्ट्रेस में मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर दी, अभी चलो मैं उल्टी कर लेती हूँ. ठीक है, आप उल्टी कर रहे हो उसके बाद. दिस इज अ मेल अडेप्टिव बिहेवियर एंड यू आर रियली यू आर एक्चुअली, आप अपने आप को बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल रहे हो, है ना. दिस इज नॉट अ वेरी आइडियल स्टेट. तो आपका पर्सनल हेल्थ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. ओके, इट कैन बी द फर्स्ट साइन ऑफ going towards mental illness, but of course you can't label yourself into the category कि आप सच्ची में mentally ill हो. But this is like the sign of wake up alarm clock जिसको हम बोलते हैं. Second हो सकता है कि आप socially withdrawn हो रहे हो, आप पहले बहुत आपके दोस्त थे, लेकिन अभी you do not wish to go out. Often we see in my clients, most of the times social withdrawal I have seen in married women around early 40s till late 40s या early 50s also. And they would be socially so active, they have called themselves like social butterfly, but now is a time when they come to me and they tell me कि I don't feel like doing anything. मतलब बहुत भारी लग रहा है, बॉडी इज मतलब भारी हो गया है, मुझे मेरा मन उदास रहता है, मुझे जाना नहीं है कहीं पे, सोशलाइज क्यों ही करूँ. तो इवन इफ आई आज देम कि नेबर्स में आप चले जाओ, आप सोसाइटी में रहते हो, आप वॉक के लिए चले जाओ, नहीं मन नहीं करता, किससे ही मिलो, फोन पे भी बात करने का मन नहीं करता ना. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल वी कैन टेक एज अ सोशल एस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा डिस्ट्रेस आ रहा है. अभी आते हैं एजुकेशनल या फिर ऑक्यूपेशनल में. आप नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हो, आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अगर आप काम कर रहे हो भूल जा रहे हो, तो ये ऑलरेडी दिक्कतें आ रही है आपके ऑक्यूपेशनल लाइफ में. तो तीनों जगह से जब आपको लाइक परेशानी हो रही है या फिर आपको एक एरिया में भी इतनी परेशानी है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, दैट कैन बी अ साइन कि मे बी इट्स एन अलार्म क्लॉक कि आई शुड आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प. But before that, if it's like mild and you think you can just talk to your friends or your family, that is also like the first stepping stone, with initiating the first step to ask for help. Right. So like physical health में कहते हैं कि basically best case scenario would be कि you join the gym, 1 hour exercise daily, और minimum would be कि 15-20 minutes walking, stretching. तो ऐसा कुछ mental health के लिए specific कह सकते हैं कि क्या करना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली जैसे बताया ना आपने कि यू कैन डू एक्सरसाइज, आप जिम में जा सकते हो, ये वो. मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए या फिर सबसे बेसिक चीज जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पहली बात तो थोड़ा सा फिजिकल रिलेटेड ही है. अगर आप फिजिकली अगर आप फिट हो, आपका माइंड ऑलरेडी ठीक है. आपका माइंड अगर ठीक है, माइंड एंड बॉडी इट गोज हैंड इन हैंड. Meditation is something I tell everyone, but of course meditation is not for everyone at the same time. तो एकदम easiest way
to like kind of self monitor yourself, matlab have a monitoring aspect on your daily life is journaling. So journaling is one of the key, um, I would say, therapeutic way to let go of your emotions also. Like once you write something on the piece of paper, you are also letting go of a lot of emotions. So you're not technically sharing it if you are uncomfortable with somebody, but at the same time you're also sharing it with yourself. So you become your own best friend when you are narrating your own story. Like it can be as simple as just putting, jotting down your thoughts. It can be a thought journal, it can be your daily journal, it can be anything, you can call it anything. But journaling helps a lot, because how you're feeling right now, suppose it's a discomfort episode, or it's an episode of something really like really good happened to you, you can all write it down. Later on when you flip back the pages, you can actually see each and every day as an episode of your life. And when you combine it together, you can also see from how far you have already walked ahead, है ना? तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रैक्टिस है जर्नलिंग, हैविंग अ डायरी. और दूसरा डेफिनेटली मेडिटेशन है, जो मैंने ऑलरेडी बोला है. लेकिन ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज़ नॉट फॉर एवरीवन. जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर अ पर्सन हु इज़ वेरी एंशियस, इन अ ट्रेट लेवल ऑल्सो, कि पर्सनैलिटी वाइज भी उनको एनजाइटी थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर पीपल, देन मेडिटेशन में उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम उसमें मेडिटेशन के साथ थेरेप्यूटिक ट्रेनिंग में हम उसको मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग भी करते हैं. जैसे कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, मसल टाइटनिंग, देन रिलैक्सिंग अगेन. सो या, दीज आर जस्ट टू लिटिल थिंग्स यू कैन जस्ट स्टार्ट टू किक ऑफ योर मेंटल हेल्थ जर्नी. And I would say journaling to, like, for especially for people like us who create content also na. So worst case scenario is if you journal, you let your mind off, you feel relaxed, and best case scenario is if you can make something out of it, you'll get content. Yeah, exactly. It's very good for creative people. Right. Okay, so थोड़ा सा दूसरी साइड आते हैं कि जब like when we talk about mental health या mental health professionals, we just see कि एक therapist है जैसा movies में दिखता है, but what other kinds of different professions are there in mental health? So of course number one is psychiatrist. So सब लोग जानते हैं. आपने MBBS किया, आपने फिर MD करा साइकाइट्री में, मतलब आप स्पेशलाइज कर रहे हो साइकाइट्री में, तो दैट इज वन ऑफ द लाइक नंबर वन. इंडियन पॉपुलेशन तो वो चाहते हैं कि मेडिकेशन ही लिख के दे. अगर बात कर रहे हो तो इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है. आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज अगेन, बट देन दैट्स द पॉपुलर ओपिनियन, साइकाइट्रिस्ट. देन कम्स साइकाइट्रिस्ट के साथ ही मतलब साइमल्टेनियसली a clinical psychologist usually work. So how is the proper way to become a clinical psychologist is to have a BA right now. I'm talking about right current trend, and not अभी क्या होने वाला है, because Rehabilitation Council of India has like published too many amendments. तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे था is to have a BA in psychology, BA और BSc इन साइकोलॉजी, देन आप MA करते हो साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में. उसके बाद MPhil की ट्रेनिंग होती है. तो MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम ये जो जनरल MPhil था, जो कि अभी डिग्री हैज डिसकंटिन्यूड. जो MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर MPhil साइकाइट्री सोशल वर्क हम बोलते हैं, उसमें आप रिसर्च कर रहे हो, यू आर अ रिसर्चर, एंड आप थ्योरेटिकली तो पढ़ ही रहे हो ऑब्वियसली अबाउट ऑल द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑल द साइकोसोशल एस्पेक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च के चीज़ें. उसके साथ साथ आप रिगरस ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब हॉस्पिटल्स में आपको भेजा जाएगा, आप ट्रेनिंग करोगे, पेशेंट्स आने वाला है और आपको रियल लाइफ पेशेंट्स के साथ डील करना है अंडर क्लिनिकल सुपरविजन. तो ये आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले हॉस्पिटल में कि बिना किसी सुपरविजन के आप किसी को भी एडवाइस देने लगो. एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कैसे डील करना है किसी भी पॉपुलेशन के साथ. कोई भी सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आ सकता है, तो यू नीड टू नो द लैंग्वेज. यू कैन ऑलवेज बी स्पीकिंग इन इंग्लिश. अगर आप फॉर एग्जांपल सबसे अभी का सबसे जो बड़ा बॉडी है इज निम्हांस में, तो यू नीड टू नो द लोकल लैंग्वेज वहाँ पे, अगर बेंगलोर में आप हो. तो ये लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फीचर. तो एनीवे, कमिंग बैक, साइकाइट्रिस्ट, then clinical psychologist. There are
देर आर स्पेशल एडुकेटर्स ऑल्सो, जैसे कि आपके इफ समबडी इज डीलिंग विद पॉपुलेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो स्पेशल एडुकेटर्स भी है उनके लिए. लेकिन जब हम बोलते हैं थेरेपिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आर देयर. तो I think most popular are these three on the top layers: psychiatrist, clinical psychologist, counseling psychologist. Now, counseling psychologist is different from clinical, because clinical psychologist can deal with and is allowed to deal with clinical population as well as normal population. मतलब हमारे पास RCI के लाइसेंस होगी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हमें लाइसेंस देगी आफ्टर एमफिल, आफ्टर यू कंप्लीट एमफिल, and then you can, you know, open your own clinic or you work as a therapist. It's up to you. But counseling psychologist में क्या हो रहा है, इसमें आप मास्टर्स डिग्री तो कर रहे हो, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो स्पेशलाइजेशन में. काउंसलिंग, क्लिनिकल, साइको ऑन्कोलॉजी इज देयर, एनीथिंग. बट उसके बाद आप किसी के अंडर आपने इंटर्नशिप किया, सपोज आपने प्रॉपर एक थेरेपी सीखी, जैसे बहुत लोग ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट है, बहुतों को मतलब जैसे कि केसेस ऑफ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के वैसे थोड़े से पॉपुलेशन के साथ वो डील कर रहे हैं. लेकिन डील कैसे करेंगे वो लोग, उनका केस काफी अलग होगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, बिकॉज दे विल बी डीलिंग विद द very surface level issues. And if those are not very deep rooted, then they can deal with it. If it is very deep rooted, they have to refer it to a clinical psychologist या फिर psychiatrist, फिर उनको रेफर करना पड़ जाएगा. तो ये काफी hierarchy तो मैं नहीं बोलूंगी, everybody works hand in hand, and there's a lot of clash that goes on कि psychiatrist is best, counseling psychologist is the best. ऐसा कुछ नहीं है, everybody is doing their jobs, everybody is very good at it. तो आप किसी का भी हेल्प ले सकते हो बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर यूनिक प्रॉब्लम, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज, दे हैव देयर ओन यूनिक प्रॉब्लम. तो आपको जो लगता है कि अगर आपको मेडिसिन की जरूरत है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे. आपको लगता है कि इट्स अ थेरेप्यूटिक रिलेटेड, बट इट्स OCD रिलेटेड, पर्टिकुलर डिसऑर्डर रिलेटेड मुझे, लेकिन मेडिसिन नहीं लेना, मुझे थोड़ा सा बात करना है, यू विल गो टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. और या फिर आपको लगता है सरफेस लेवल है, एकदम डे टू डे लाइफ के लिए मुझे डील करना है, देन यू विल गो टू अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. ओके. एंड यू मेंशन कि ऐसे कोई भी वो नहीं कर सकता, तो जैसे मूवी का सीन मुझे याद आ गया कि पेशेंट थेरेपिस्ट बना हुआ था, तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ है कभी? फनी इंसिडेंट, हाँ, आई थिंक मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स तो हुए हैं, जहाँ पे sometimes it happens कि suppose a patient they themselves think कि they are a therapist, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स उनको ऐसे कन्फ्रंट नहीं कर सकते हो, उनको भी बताने का तरीका अलग होगा. बट फनी इंसिडेंट्स डेफिनेटली हुए हैं. एंड आई थिंक सबसे अच्छा होता है और मुझे सबसे मजा आया है विद चिल्ड्रन पॉपुलेशन. मतलब आप अगर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो, आपको तो बहुत ही मजे है, क्योंकि आप उनके साथ खेल रहे हो, आप उनके साथ सिखा भी रहे हो, आप उनसे भी बहुत सीख सकते हो. जैसे कि डाउन सिंड्रोम के जितने भी बच्चे मैंने आज तक डील किए हैं, दे हैव सच ग्रेट क्वालिटी ऑफ एम्पैथी. मैंने वो नहीं देखा है किसी भी बच्चे, मतलब मामूली बच्चों पे मैंने नहीं देखा है कि उनके पास इतनी एम्पैथी है. डाउन सिंड्रोम के बच्चों में मैंने जो देखा है, दे आर वेरी ओबीडियंट. मतलब आप उनको इंस्ट्रक्शन दोगे, वो अभी अभी कर देंगे वो सारी चीजें. बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि उनकी सिवियरिटी लेवल कितनी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कितना परसेंटेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनमें. बट या, यू गेट टू लर्न ऑल्सो, यू टीच ऑल्सो. Sometimes it's light mooded, sometimes it gets really serious, so you have to be mentally really prepared, you have to be mentally really at a good state, and मैंने जैसे बताया good mental state of well-being, तभी जाके आप किसी को ट्रीट कर सकते हो या फिर आप किसी के साथ डील कर सकते हो. ओके. एंड लाइक ज्योग्राफी वाइज कोई डिफरेंस है कि इंडिया में इस तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं, बाहर इस तरह के रहते हैं, या मोर और लेस एक जैसा है? To be honest, it more than geographical differences, it's more about your socio-economical background. जैसे कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मतलब कंपैरिजन करके, कि कैंसर एक रिच लोगों की प्रॉब्लम है, रिच लोगों को ही कैंसर होते हैं, बट ऐसा नहीं है. सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सबको ही होती है ना, राइट? अभी बिकॉज पीपल आर, दे हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट डिप्रेशन, एंजाइटी, काफी लूजली अभी ये टर्म्स यूज किया जाता है, तो वो बोलते हैं कि ये सिर्फ जेनजीज को हो रहा है. एक्चुअली जेनजीज को हो नहीं रहा है, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ये वेस्टर्न कल्चर में, अमेरिका में, जैसे कि बिकॉज दे हैव डिफरेंट
सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड और दे आर मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से उनके उनके जो डिफिकल्टीज है लाइफ में ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन क्योंकि मेंटल हेल्थ वाइज already countries like America, they have talked about it, they have been talking about mental health since forever. तो of course उनके प्रॉब्लम को डील करने का तरीका, ट्रीटमेंट या फिर थेराप्यूटिकल अप्रोच इज इट्स आई वुडंट से मच एडवांस, बट एट द सेम टाइम बहुत एक्सेसिबल है, और वो एक्सेसिबिलिटी इंडिया में काफ़ी कम है. इस वजह से मुझे लगता है जो लोअर सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं उनको मेंटल इलनेस जैसे कि सिवियरिटी ऑफ द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इज मच मोर. एंड आई कैन ऑल्सो से दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने आई डोंट वांट टू जनरलाइज इट अगेन, आई डोंट वांट लाइक डिस्क्लेमर, आई डोंट वांट टू जनरलाइज इट, बट most of the severe mental illness that I had dealt with, most of the people came from a very lower socio-economical background, because उनको जब तक पता लगा कि ये तो काफी प्रॉब्लमेटिक है, और वो लोग तब जब तक हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक ऑलरेडी 20 साल बीत गए. मतलब 20 साल के बाद उनको पता चल रहा है. जैसे कि ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें अ क्लाइंट वुड और अ पेशेंट वुड बी हियरिंग वॉइस. अभी आप उनको पूछोगे कि कब से आपको आवाज सुनाई दे रही है, इंसेक्ट्स की आवाज, कुछ एक आवाज, वो बताएंगे कि बचपन से मुझे लगा ये नॉर्मल है, उनके लिए वो नॉर्मल था, right? But later on it started to develop as an auditory hallucination. ऑडिटरी हेलुसिनेशन से फिर डिल्यूजन भी आ रहा है उनको. वो होते 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 वो एक सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में वो डेवलप हो गया, ये एक फुल ऑन पैथोलॉजी बन गया है, क्योंकि 12 साल से कभी उनको मिला ही नहीं मेंटल हेल्थ सर्विसेज. तो उस तरीके से ट्रेंड तो नहीं बोलूँगी, बट आई वुड से कि बिकॉज पीपल आर टॉकिंग वेरी ओपनली इन वेस्टर्न कंट्रीज, सो दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से, तो उनका शायद सिवियरिटी लेवल मैनेज हो रहा है. या बट यहाँ पे मैनेजमेंट का काफी इशू है, क्योंकि जब तक आप आते हो डॉक्टर के पास ऑलरेडी इतना सिवियर हो गया कि आपको एंटीसाइकोटिक मिल रहा है, मतलब बहुत ही बड़े डोसेज में. तो दैट इज वेरी, हाँ, दैट इज समथिंग टू बी वेरी कंसर्न अबाउट. मतलब ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है लोगों का कि जब तक सिवियर ना हो जाए, इवन फिजिकल हेल्थ के साथ भी यही करते हैं, तो मेंटल हेल्थ तो फिर और भी ज्यादा वो है. और ऑल्सो आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए सेल्फ अवेयर होना थोड़ा मुश्किल होगा ना. ऐसा कुछ एक दो पॉइंटर्स होंगे कि जिससे एक बंदा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सेल्फ अवेयर हो सकता है कि थोड़ा कुछ गलत डायरेक्शन में जा रही है. सपोज अभी आप अपने आप को कैसे वो करोगे, एसेस करोगे, राइट? तो एसेस करना काफी मुश्किल है. तो इसमें से सबसे इजी वे आउट इज टू पॉज. मतलब हम डे टू डे लाइफ में जब बिना सोचे बिना करे, मतलब मैकेनिकल रोबोट की तरह हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, हमें सोचना तो नहीं पड़ता ना कि ब्रश करना पड़ता है, हमेशा ब्रेकफास्ट खाना पड़ता है, तो वी डू इट लाइक ऑटोमेटिकली. बट टू हैव दैट पॉज, and as I said, journaling, and if you're not journaling also, it can be just asking yourself questions, something we call emotional regulation, like how do I feel right now? Okay, suppose you're very irritated. Now you're irritated and you're snapping at everyone. That can be a sign of maladaptive behavior, because you do not know how to regulate your emotion. At that time you can pause and understand कि wait, it wasn't a big deal. मतलब मुझे बस सपोज मेरे भैया ने मुझे बोला कि लाइट ऑफ कर दे, मैं क्यों ऑफ करूं? इज इट द राइट वे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये कि जनरल वे में, बट कभी कभार जब बहुत ज्यादा आपका सीवियर हो रहा है, वो काफी ज्यादा स्नैप कर रहे हो, आप पूरे वीक में बहुत ज्यादा स्नैप कर रहे हो, तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दैट क्वेश्चन, यू नीड टू पॉज अ लिटिल बिट कि हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, and how did I react? The emotion that I feel right now, is it going congruent, मतलब simultaneously, मतलब balanced way में, to how I react? तो आपका रिएक्शन और बिहेवियर अगर हैंड इन हैंड है, तो आप ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ इट कि आपके मेंटली भी आप ठीक बैलेंस जा रहे हो. तो आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स और योर एक्सपीरियंसेस, दीज 3 थिंग्स शुड बी थोड़ा सा बैलेंस्ड. तो अगर वो आप खुद से मॉनिटर कर पा रहे हो, तो फिर आई थिंक यू कैन गो अ लॉन्ग वे विथ योर गुड मेंटल हेल्थ जर्नी. Right. So, how do you think? Like, what are your thoughts about Gen Z? Like,
वेरियस टॉपिक्स के लिए काफी डिबेट होती रहती है कि ये ऐसा नहीं वैसा चल रहा है, बट स्पेसिफिक टू मेंटल हेल्थ, हाउ डू यू थिंक दे आर अप्रोचिंग इट, एंड इज इट हेल्पिंग इन क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस, या कैसी पेस चल रही है उस हिसाब से? um I would say, मतलब first of all, kudos to Gen Z. मतलब I don't know if I can say this, but I'm the starting of Gen Z. So I'm not rooting for them also, but think I'm starting of Gen Z. But yeah, I like Gen Z because of their assertiveness. Ki they are very much out, like out there. They are not afraid of putting out an opinion, you know. Yeah. So I feel बहुत अच्छा इंक्रीज इन अवेयरनेस आया, मतलब इंक्रीज इन अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो तो आप देख ही सकते हो. एंड नॉर्मलाइजिंग थेरेपी, मैंने कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखा है कि कंटेंट क्रिएटर्स दे आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू थेरेपी, आस्किंग फॉर हेल्प. और इवन इफ यू टॉक अबाउट ये सेलिब्रिटीज लाइक दीपिका पादुकोण, दे टॉक्ड ओपनली अबाउट देयर डिप्रेशन ड्यूरिंग देयर ब्रेकअप. इट्स अ बिग डील, बिकॉज डिप्रेशन पहले तो ऐसे बोलते थे ना, ये तो मतलब दिमागी प्रॉब्लम है, पागल है, ऑल दिस थिंग्स. बट अभी Yeah. when we say we are depressed, we kind of take it seriously. We tend to take it seriously, and I give this credit to Gen Z because they have been using these terms. They have been spreading awareness, so kudos to them. But at the same time, are we over labelizing these terms? Are we लाइक लूजली, मतलब एकदम लूजली हम लोग इसको, इन टर्म्स को यूज कर रहे हैं? जैसे कि आपको अगर नर्वसनेस हो रही है, आप बोल रहे हो मुझे तो एंजाइटी है. आप लो मूड हो तो आप बोल रहे हो कि मुझे तो डिप्रेशन है. आप बहुत कुछ फास्ट कर रहे हो तो आप बोल रहे हो अरे मुझे तो एडिहड हो गया. तो ये काफी ओवर लेबलाइजेशन में जा रहा है ये चीजें. बट एट द सेम टाइम, ब्रेकिंग थ्रू द स्टिग्मा ऑफ टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, आई गिव full credits to Gen Z. But at the same time, over labelization is something we have to stop, because when we say ki all these memes, I mean, sometimes I'm sure we have also shared these memes, I guess, unknowingly, कि what our job has given us, it has given us trauma. ठीक है, काफी लूज वे में हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ट्रॉमा. सो फॉर अ पर्सन हु इज एक्चुअली गॉन थ्रू ट्रॉमा, अ पर्सन विथ post traumatic stress disorder, it's not easy for them. They have constant flashbacks, they can't sleep, they have constant nightmares, they freeze, they will have shivering, ये सारे trembling, they will have constant palpitation. ऐसे इस तरीके के सिम्टम्स उनको मतलब आप देख सकते हो. और एक जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, थोड़े से आप ऑर्गेनाइज हो, थोड़े से सिस्टमेटिक हो, तो आप बोल दोगे मुझे तो ओसीडी है. पर ओसीडी इज नॉट जस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और बीइंग क्या बोलूं, जस्ट बीइंग क्लीन. ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर भी जैसे हम बात करते हैं, उसमें ऑब्सेशन इज रिलेटेड टू योर थॉट्स, अ थॉट विच इज इंट्रूसिव इन नेचर, कि आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हो, बार 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 आ रहा है उसके बारे में. उस चीज को हटाने के लिए आप कुछ एक बिहेवियर उसके साथ अटैच कर देते हो, जैसे कि हाथ धोना, कि गंदगी है मेरे मतलब सराउंडिंग में गंदगी है, अभी मुझे हाथ धोना ही पड़ेगा. इट्स अ कंपेंसेटरी बिहेवियर ऑल्सो. तो ये कंपल्शन मतलब रिपीटेडली आप रिपीटेटिव बिहेवियर या एक्शन बार 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 कर रहे हो. तो ये काफी ज्यादा बिलीफ बेस्ड डिसऑर्डर भी है. मैं अभी जस्ट एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, लेकिन हाँ, जस्ट यूजिंग दीज एज अ as like, you know, loose terms, I don't think so that is helping a lot of people. Because if you label yourself, and since a lot of you know, Gen Z are the consumer of social media so much, itne sare aise wale content, one person, a vulnerable individual can identify themselves with these kind of symptoms कि अच्छा मुझे भी तो nervousness होती है, मतलब मुझे anxiety है. तो it will directly affect their self esteem, it will directly affect their personal growth. तो स्टिग्मेटाइजेशन एंड आइडेंटिटी में उनको प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मेंटल हेल्थ को समझने में, क्योंकि आप ओवर लेबलाइज कर रहे हो. फिर आप बहुत कैजुअली मेंटल हेल्थ को ले रहे हो, सीरियसनेस ऑफ द डिसऑर्डर इज गॉन, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो कि इस ट्रॉमा हो गया मुझे. ट्रॉमा अभी कितना easy word हो गया है, but trauma is such a huge thing for somebody to suppose lose their parents due to a natural calamity. It's a trauma. For somebody to have no memory about what happened because it was so traumatizing, that is the effect of trauma. जिसको dissociative amnesia बोलते हैं. तो a lot of things are there. So I would say अच्छा भी है, बुरा भी है, it goes hand in hand. But yeah,
we have to start taking mental health content थोड़ा सा more seriously and not give advice. And yeah, I want to point this out also. Everybody is giving advice on social media platform about mental health. It's good that you're spreading awareness. Your intentions are good, but at the same time, go back, do good research, and then talk about it rather than saying कि did you see this meme where somebody was saying कि क्या depression होता है, एक थप्पड़ मारो वो ठीक हो जाएगा, right? yeah. So तो these वो are not good. Yeah. ऑल्सो So ये काफी चलता है जब भी कुछ लाइक हॉट केस आ जाता है ना अगर, तो एवरीवन विल स्टार्ट पुटिंग स्टोरीज कि यू फील फ्री टू मैसेज मी, कॉल मी, एंड दे वोंट इवन नो कि इफ दे इवन हैव द एनर्जी टू हेल्प। और जनरली फिर यही होता है कि वो लोग ही होते हैं जो सबसे पहले कॉल नहीं उठाते। I had seen this also. Yes, you have like pointed it out, right? मैंने ये काफी ज्यादा कोविड के टाइम पे देखा था, because I had also done some certificate course उस टाइम पे, तो I had that certification to actually provide help. तो मैंने ये किया था अंदर APA, American Psychiatric Association, तो मैंने वो डाला था. Soon after that, I had seen some random people from my Instagram also putting up, please reach out for your help, reach out for your mental health wale services. I'm like, are they even from this background? But it's good if you want to help someone, but at the same time, are you credible enough to give that kind of a services? Because at this point, you are really taking the control of somebody's vulnerability. So that is something you have to टेक सीरियसली, राइट? तो हाँ, बहुत कैजुअल हो चुका है अभी मेंटल हेल्थ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है. Yeah, exactly. Like it's good that people want to help, but know that if you have that certain expertise, क्योंकि अगर if you start helping which you can't deal with, so it might, you know, और खराब कर सकता है. हाँ, exactly. Okay. So since you know look very passionate about psychology, what are some of the interesting concepts in psychology? Okay, I will tell you one of the concept which is my absolute favorite. To be honest, ये एक्चुअली आई एम प्रीटी श्योर ये किसी भी इंसान को काफी ज्यादा रेलेवेंट लगेगा, विच इज अटैचमेंट स्टाइल. तो देयर इज अ थ्योरी विच वाज गिवन बाय बॉल्बी एंड लेटर ऑन इट वाज कैरीड forward by Mary, if I'm not wrong, Mary. So there are certain kind of attachment style that we develop during our childhood, and the kind of attachment style that you're developing during your childhood because of the different parenting style, उससे आप that would depend कि how you're forming any kind of relationship in your adulthood. So it's a very very crucial concept, and I feel a lot of people should actually know about this. Again, this is not entirely कि psychological ही है, आपको psychological concept में ये आएगा, ये किसी भी general population should know this. So yeah, so the 4 types of attachment style में सबसे पहला आता है secure attachment, जिसमें a parent is nurturing, ठीक है. सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी केयर गिवर, जो कि आई एम considering parents, but it can be of course grandparents or anybody who is a primary caregiver. A primary caregiver with whom the child is actually has formed an attachment figure with. I'm talking about that person. तो उसमें the attachment वाले figure is giving you know safe space to grow. काफी नर्चरिंग है, काफी आपको सिक्योर फील कराते हैं. यू आर एनकरेज्ड every time you're doing something good. You are acknowledged emotionally, however you're feeling. If you're emotionally low, you're emotionally happy, you are actually given that safe and secure place. That that type of attachment style is called secure attachment, जिसमें when a child is developed and grown in that kind of an environment, later on what happens is कि that child will grow into an adult who has good self esteem. अगर आपके चाइल्डहुड में ऐसा अटैचमेंट स्टाइल था तो आपके सेल्फ एस्टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मतलब मैं बोल नहीं रही कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द थ्योरी. तो आपको स्कोप मिलेगा कि यू कैन ग्रो इन अ वेरी हेल्दी वे. आपके सोशल स्किल्स को आप यू हैव द फ्रीडम टू
एक्सप्लोर, गुड इमोशनल रेगुलेशन होगा आपके पास रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होगा, तो यू आर गिवन दैट अपॉर्चुनिटी. पर एट द सेम टाइम देर इज अनदर टाइप ऑफ attachment style which we call as anxious attachment style, जिसमें the caregiver themselves is nurturing at the same time emotionally unavailable. मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक दिन आप एक पेरेंट ने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे दिए, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, गिफ्ट्स दे दिए, नेक्स्ट बर्थडे में they are just they don't care about the child anymore, they did not celebrate the birthday, they did not remember the birthday, and this child is going to be very anxious about the entire situation because it's very confusing, right? So Right. this kind of anxious attachment will lead to having very बैड सेल्फ एस्टीम व्हेन यू ग्रो अप एज एन एडल्ट. तो आपके सेल्फ एस्टीम में स्ट्रगल होगी, आपके एक्सपीरियंस टू have a relationship, it can be with your girlfriend or a boyfriend, or it can be with friendships also. Somebody is being close to you, you will immediately have this anxiety कि no, they will actually abandon me. You'll have that fear of abandonment also. Sometimes it can also lead into being very clingy कि मुझे छोड़ के मत जाना, जस्ट बिकॉज यू हैव दिस चाइल्डहुड अटैचमेंट स्टाइल जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एंशियस एनवायरनमेंट में ग्रो करना पड़ा. तो दैट ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अभी थर्ड में आते हैं जो कि अवॉइडमेंट एंड डिसमिसिव अटैचमेंट स्टाइल होता है, जिसमें पेरेंट देमसेल्फ, पेरेंट और प्राइमरी केयर गिवर, दे आर वेरी मच इमोशनली डिस्टेंट, रिजेक्टिंग है, डिसमिसिव है, दे डोंट केयर. मतलब चाइल्ड कुछ भी कर रहा है, दे विल ऑलवेज हैव वेरी डिस्करेजिंग इमोशनल एक्सप्रेशन. उनके वनरेबिलिटी को बिल्कुल भी वो प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, एकदम ही डिसमिस कर देंगे, अवॉइड करेंगे कि रो मत मेरे सामने, चुप रहो, तुम्हें रोना नहीं है. जो कि आई थिंक ऑल द millennial kids with their teachers must have felt some way or the other, avoidant वाला कि रोना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. But anyway, now not on the lighter side, coming to the deeper side of the क्या कहते हैं impact on the child will be very इमोशनली डिस्कनेक्ट. मतलब वो ही अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है टू द पॉइंट कि इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म करने में उनको प्रॉब्लम होगी, उनको हायर रेट्स ऑफ लोनलीनेस फील होगी. मतलब इमोशनली काफ़ी वो लोग स्ट्रगल करेंगे टू हैव द नर्चरिंग काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, बिकॉज वो खुद ही अवॉइडेंट हो जाएंगे कि because this is what they have learned their whole life, this is how they have learned and seen and how they have modeled and pictured their parents to be. So that is also one of the thing. And one last one is disorganized attachment, जिसमें से ज़्यादातर सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जब हम बात करते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया एक इस तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपके वेरियस सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आवाज़ें सुनाई देना, थॉट प्रोसेस ऐसा होना कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पैरेनोया जैसा, मतलब इसको हम डिल्यूजन बोलते हैं, पैरेनोया जैसे होना, कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे टाइप की चीज़ें. फिर उसमें से और भी काफ़ी ज़्यादा साइकोमोटर होता है, साइकोमोटर सिम्टम्स आर देयर आर सोशल विड्रॉवल, ऑल दिस सिम्टम्स आर देयर. एनीवे, कमिंग बैक, disorganized attachment style has like the worst impact on a child, because here the behavior of the parent is so unpredictable कि the child themselves get so confused. मतलब हमने इसके previous में भी बोला है कि avoidant में at least the child knows कि parents or the caregiver is avoiding me, बस disorganized में ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है. और इस वाले डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट में आप फियर इंड्यूसिंग बिहेवियर भी प्राइमरी केयर गिवर में देखते हो, कभी कभी नेग्लेक्ट, कभी कभी अब्यूज. आई थिंक नाउ दिस लेटेस्ट सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स हैज कम, मॉन्स्टर्स करके, उसमें नेग्लेक्ट और अब्यूज डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट स्टाइल आप ऑब्जर्व कर सकते हो. आफ्टर दिस पॉडकास्ट यू कैन सी एंड ऑब्जर्व द पेरेंटिंग स्टाइल इज कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज बिकॉज इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. तो क्या होता है विद दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट स्टाइल, अ चाइल्ड विल हैव mixed avoidant, anxious kind of behavior, they'll have difficulty in forming relationship for sure, emotional regulation काफ़ी अलग होगा उनका, they will have problems, they can have problems such as PTSD. चाइल्डहुड से ही उनको एनजाइटी तो हो रहेगी, डिप्रेशन भी हो सकता है, मतलब विच इज़ मास डिप्रेशन वैसा हो सकता है. मास मतलब आप इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. देयर विल बी स्ट्रेसर्स, मतलब एनी टाइम स्ट्रेसर्स है उनके लाइफ में, एनी टाइम दे विल बी इन अ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, मतलब सर्वाइवल मोड में. फ्लाइट और फ्लाइट हम लोग जब नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है, तो इन बच्चों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी वेरी मच एक्टिव बिकॉज
उनको रेस्ट एंड डाइजेस्ट करने का टाइम ही नहीं है. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज नॉट मतलब सो एक्टिव एज मच एज सिंपैथेटिक, बिकॉज आप बार बार सर्वाइवल मोड में हो, बिकॉज योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू कि इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको बच के रहना है. तो PTSD, एंजाइटी, दे आर vulnerable to a lot of psychological disorders. So yeah, I think attachment style is something I wanted to share, and everyone Yeah. should know about it. या दैट्स ग्रेट एक्चुअली. मतलब ये काफी लोगों ने फेस किया ही है डेफिनेटली अपने लाइफ में, तो दे शुड नो कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है. सो दिस वाज रियली गुड. एंड स्पेशली सम ऑफ द केसेस लाइक यू मेंशन्ड दैट गिफ्ट वाला थिंग ना, आई कुड रिलेट इट विद सो मेनी थिंग्स. लाइक डेटिंग में ही होता है कि अगर पहली दूसरी डेट पे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा गिफ्ट दे दो और फिर ना दो तो इवेंचुअली द इंटरेस्ट विल डाई डाउन, Yeah, है ना. yeah, और exactly. recent even in content if you see, suppose there is a 10 episode series and first episode बहुत ही अच्छा है, बाकी बट उतने अच्छे नहीं है, तो वो ग्राफ नीचे जा रहा है. अभी recent Mm-hmm. example if I have to say, there is this show on YouTube called India's Got Latent. Yeah, I watched है ना. that. तो Yeah. अब उसमें पहला एपिसोड इतना अच्छा है, नाउ दे हैव टू मेंटेन दैट थिंग. अब गेम ही सारा वही है कि कब तक मेंटेन हो सकता है. अगर नीचे भी जा रहा है तो ज्यादा नहीं जाना चाहिए. सो दैट वाज वेरी रिलेटेबल इन लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. Yeah, definitely. मतलब a lot of people can relate to it. And as I said कि आप अभी जैसे लेटेस्ट ट्रेंड ये भी है ना, सिचुएशनशिप जिसको बोल रहे हैं, जो कि लोग काफी सीरियसली ले रहे हैं. आई मतलब इट्स माय ओपिनियन, आई विल नॉट टेक सिचुएशनशिप सीरियसली, पर सिचुएशनशिप भी एक तरीके का ये कॉन्सेप्ट है कि आप लोग फन कर रहे हो, ठीक है, कंसेंट है दोनों में, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, ये एक सिचुएशनशिप है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट वन ऑफ द ईदर ऑफ द पर्सन विल गेट हर्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन विल गेट हर्ट, क्योंकि वन विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अदर पर्सन, और मे बी हाउ दे वर ट्रीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, वट एवर रिलेशनशिप दे वर हैविंग म्यूचुअली, दैट हैज रिड्यूस. लाइक जैसे आप यू सेड ना कि गिफ्ट पहले मिल रहे थे अभी नहीं है, क्योंकि it can be an outcome of anxious avoidance style. People are not talking about it, but आप anxious हो, आप avoid कर रहे हो, एक commitment से avoid कर रहे हो जो कि आपको चाहिए भी, लेकिन आप उस चीज से avoid भी कर रहे हो क्योंकि आपको anxiety भी आ रही है अंदर से, nervousness feel हो रहा है जब भी आपको relationship में, because there are so many options. आप Bumble में जा सकते हो, Tinder में जा सकते हो, you will miss out on a lot of other options. You will मतलब I think right now the population मतलब current people will have that kind of a thing कि I need options, तो उनको FOMO भी है क्योंकि इतने सारे options आप swipe कर करके you can actually have those kind of options. So this can be an example of anxious avoidant kind of attachment or relationship. स्पेशली लाइक यू सेड ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, ऊपर से लो अटेंशन स्पैन इतनी हो गई है, पीपल इनडायरेक्टली फिर वो दे आर नॉट रेडी टू हैव प्रॉपर कॉन्वर्सेशन या टफ कॉन्वर्सेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम सिचुएशनशिप टू अ रिलेशनशिप. Exactly. सब इंटर रिलेटेड है. I am like with you 100%, क्योंकि attention span रील देखे जा रहे हो, शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही, मैं खुद भी नहीं देखती, हम भी देखते ही है ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स लेकिन दैट हैविंग दैट माइंडफुलनेस अबाउट कि आप कितना स्क्रीन डेली स्क्रीन टाइम आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना कम हो रहा है जनरेशन वाइज, ये काफी अलार्मिंग है आजकल. इसीलिए पेशेंस नहीं है लोगों में कि बैठ के बात करो. आई थिंक from the college days we come from, we will have that thing ki are do you want to go to the canteen, do you want to catch up. Right now drop me a text, slide into my DM, that's it. It has become as simple as that. Yeah, so true. Would you like to discuss any interesting case or something that people should know in a very general way without mentioning any details? Yeah, so not my personal case though, but one of the experiment which is like so it is popular, and I think it is one of my favorite experiment. Apne cases mein I would not want to reveal right now because I'm still under training for some professional ethical code I have to follow. But yeah, one of the case which is very much popular in the field of psychology is one is Phineas Gage, another is Little Albert. I want to talk about Little Albert today because this case is very much like it's very interesting in a sense कि there was a 9-month-old baby. His name was his name, I don't know whether that's it hypothetical or it was actually Albert, but he was called
एल्बर्ट. ओके, सो नाउ देयर इज अ बिहेवियरिस्ट. जैसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं ना साइकोलॉजी में, बिहेवियरल साइकोलॉजी करके भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें से पायनर था जॉन वेटसन. ठीक है, और वो काफी ज्यादा बिलीव करते थे कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. अगर आप साइकोलॉजी के डिसिप्लिन को पढ़ रहे हो तो वो काफी एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, टू द पॉइंट कि वो प्रूव करना चाहता था कि ही वांटेड टू सी हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस. एक लर्निंग का एक छोटा सा हिस्सा हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरी. बट उनको ये था कि फोबिया जो है वो भी एक बिहेवियरल किस्म का एस्पेक्ट है. मतलब आप अगर आपको फोबिया है वो इननेट नहीं है, वो बिहेवियर से आप सीख सकते हो. तो इसमें ही वॉज ट्राइंग टू डू टू थिंग्स कि आप लर्निंग कैन बी done through association of टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. अगर हम दो चीज़ों को एक साथ इकट्ठा एसोसिएट करते तो लर्निंग हो सकती है. सेकेंडली कि फोबिया जो है, फोबिया एज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इशू, इट इज नॉट, it can be learned. Okay, so now coming back to this little Albert. So little Albert was 9 months old baby, and as we know, babies are initially not very, they are open to exploring. You know, they will put anything in their mouth because they are very much they're open to basically exploring, right? So this little baby was not afraid of being around furry animal. तो जॉन वेटसन ने क्या किया, उन्होंने वाइट रैट, ही गॉट अ वाइट रैट, ही गॉट अ वाइट रैबिट, ही गॉट इवन अ डॉग, लाइक फरी एनिमल्स के साथ उसको एक्सपोज किया. एंड द बेबी वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल. सो वट ही डिड वॉज he finally took a white rat, and every single time white rat was going, matlab white rat was kept just in front of little Albert, and Albert was trying to touch the rat, or प्यार करने के लिए वो आगे बढ़ा. There was a huge rod iron का noise, मतलब आयरन रॉड नहीं होते ढम करके, एकदम हॉरिबल सा हॉरिफाइंग वाला आवाज. एवरी सिंगल टाइम ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर, उसके एक्सप्लोरेशन को रोका जा रहा था विद अ नॉइज. तो पहली बार किया गया तो पहला रिएक्शन ही बेबी का क्या था, ऑफ कोर्स वो रोने लगा, है ना, कि कोई भी 9 months old बेबी विल स्टार्ट टू क्राई इफ देयर इज अ लाउड नॉइज. Second trial, third trial, every single time he's trying to explore this furry, because of course babies would love any kind of stuffed toy, any kind of fluffy furry thing. So he's trying to reach out to the rat. This loud noise has been associated. Now what happened eventually कि this association got generalized का ये मतलब है कि it was not specific to that animal only. After this experiment was conducted with few more trials and trials, this was one of the most horrible experiment which was done in the field of psychology. So that's why this is like very remarkable also. मतलब बहुत prominent भी है ये, क्योंकि ये ethical code के against था. Anyway, eventually what happened कि baby generalized it because बहुत कम उम्र में उनको ये सिखाया जा रहा था कि every time you will try to reach out to an animal like this, you will have something horrible coming up, like as a consequences. So eventually when he was exposed to any kind of furry thing, furry animal में rabbit, dog, white rat से तो वो डरता ही था. He had developed an intense fear which was irrational in nature. Irrational fear को ही हम phobia बोलते हैं, to the point कि you can't even move, you can't even सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पर्सनल और आपके ऑक्यूपेशनल लाइफ में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, दैट इज फोबिया, जस्ट एज अ लाइक अ डेफिनेशन. तो उसको उनको लिटिल एल्बर्ट डेवलप दिस काइंड ऑफ अ फोबिया, जिसमें उनको रैबिट से डर नहीं लग रहा था, उसको डॉग से भी डर लग रहा था. ही वाज आल्सो स्कैर्ड ऑफ सेंटा क्लॉज के बियर्ड से. ओके, तो इट गॉट जनरलाइज्ड. सो विद दिस एक्सपेरिमेंट द आफ्टरमैथ वाज कि फोबिया कैन बी लर्न. बट इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम ये भी सीखते हैं कि हाउ brutal was John Watson, because he did not try to reverse his experiment. So what was learned, he did not do anything to reverse the conditioning. इसको हम conditioning बोलते हैं, जब दो चीज़ों को हम associate करके एक learning आप करते हो ना, उसको हम classical conditioning एक experiment है, हम उसको conditioning बोलते हैं. इस conditioning को उसने reverse करने की उन्होंने कोशिश नहीं की, उसको unlearn कराने की कोशिश नहीं की. So throughout little Albert's entire life, he developed fear for furry, white animal or any kind of furry white object. So this is what how it contributed to his phobia. And like you mentioned words like horrible, unethical, yet remarkable.
कितना ironic है रिमार्केबल तुमने। इसीलिए है क्योंकि हमें इससे ये पता चला कि हाँ बिहेवियरल है, रिमार्केबल है, बट लाइक पुशिंग या असाइड द अनएथिकल पार्ट. या आई मीन डेफिनेटली, बट काफी आयरॉनिक था सुनने में। आयरॉनिक तो था. इज इट रिलेटेड टू लाइक these days अभी काफी चल रहा है कि people are liking dark jokes, so is there any psychology behind कि why people like dark jokes more? मतलब इफ आई हैव टू साइको एनालाइज, सो साइको एनालिसिस में अगर आप डार्क जोक्स कर रहे हो, आप हंस रहे हो बेसिकली, राइट? यू आर मेकिंग अ जोक आउट ऑफ योर ट्रॉमा, like real trauma. If it's actually a real trauma, there are defense mechanism actually क्या होता है, when you have in our personality we have three kind of elements. Ego, super ego बोलते हैं उसको. तो एक जो ईगो है, ईगो इज द एलिमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी जो काफी प्रैक्टिकल सा है कि रियलिटी प्रिंसिपल में चलना कि आज अगर मैंने पैसे नहीं सेव किया, आज अगर मैंने डोमिनोज पिज्जा खा लिया तो कल मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, वेरी वेरी प्रैक्टिकल. Yeah. तो समटाइम्स व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विथ few things or situation or things in life which is actually challenging your ego to feel that anxiety, so to remove that kind of an anxiety from your consciousness, we push these things to our unconscious mind. Now humor is of course, humor हम अगर जब तक आप consciously कर रहे हो, ये defense mechanism पॉजिटिव भी हो सकता है. ह्यूमर इज अ पॉजिटिव, इट कैन बी अ पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कि आप अपने ट्रॉमा को काफी लाइटली ले रहे हो. इट इज एक्चुअली वन ऑफ द टेक्निक ऑफ ये इट इज अ टेक्निक ऑफ थेरेपी ऑल्सो, जब आप अपने ट्रॉमा को थोड़े बहुत लाइटली जोक में लेते हो. लेकिन टू द पॉइंट कि आप इतना जोक कर रहे हो कि आप डिनाई कर रहे हो, एक दिन डिनाइल ही है कि हाँ मैं तो जोक कर रहा हूँ लेकिन ऐसा होता ही नहीं, मतलब मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे जॉब से, लेकिन आप बहुत सफर कर रहे हो प्रॉब्लम से. तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द रियल सिचुएशन, यू आर डिनाइंग द एंटायर सिचुएशन. इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म नाउ, एंड यू आर डूइंग इट अगेन अनकॉन्शियसली. You're pushing everything to your unconscious mind, and more things you'll push behind your unconscious mind. It will pile up and pile up, and one day it will actually erupt like a volcano. So best thing to do is to be very, as you said, aware. Being aware about ये सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कॉन्शियसली अगर आप कर रहे हो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट और ईजी भी हो जाता है आपके लिए. लेकिन सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, वो दैट इज व्हेन द यू ड्रॉ द लाइन कि आई शुडंट हैव सेड दैट, एंड अ लॉट ऑफ टाइम यू आर नॉट रियलाइजिंग बिकॉज अनकॉन्शियसली हो रहा है, बट यू नीड पीपल अराउंड यू हु कैन हेल्प यू विद दैट कि आयुष तू ऐसा नहीं था, बट आजकल तो तू ज्यादा ही डार्क ह्यूमर कर रहा है, एक्चुअली सब ठीक है कि नहीं. So yeah, this is the psychology behind, I think. Okay, so these kind of- basically it should be done consciously. yeah, consciously, self-awareness, being mindful, very demure. Yeah. Okay, so I think it's a good time to wrap. Do you have any final takeaway or any message you would like to give? First of all, I would like to thank you for this opportunity once again. I had such a wonderful time talking to you. I think we are catching us after so many years, and that too in the occasion of Mental Health Day. So I'm really happy to be a part of this. And yeah, my takeaway is to, you know, just don't be afraid of unleashing your inner child, because today we talked a lot about childhood attachment, and I personally feel like whatever has happened to you in the childhood uh, tells a lot about how you are as a person. So don't be afraid of unleashing that inner child. If sometimes you feel like throwing tantrum, throw tantrum, because that will help you to understand ki what is actually going on rather than repressing it. So inner child. Yeah, go inner Yeah, child. go inner child. Okay, so just one final question. This is little bit related or thoda unrelated bhi, since you mentioned कि people sometimes start hearing voices or delusions होने लगते हैं. So do you believe in ghosts? I don't want to contradict. अरे मेरे प्रोफेशन में अभी क्वेश्चन आ जाएगी अगर मैंने आंसर किया तो. देखो, Okay, I think we can leave it at that. ठीक है, फंसा रहे हो तुम मुझे. ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ लिसन, दीज आर जस्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम आई एम अ कंज्यूमर ऑफ हॉरर, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज. ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. क्लास 11-12 में मैं बहुत ये हॉरर मूवीज देखती थी. ग्रज पार्ट 1, 2, 3 ये सब देख लिया. तो
To be honest, it has taken a lot of time for me to accept this, but you're saying is there a like a paranormal thing happening right in the like hearing me, because I have trained my brain to rationalize each and every behavior of human being. Right now I can't even think. तो अभी जब अगर कोई बोलेगा भी ना मुझे कि मुझे भूत दिख गई, आई थिंक ऑफ विजुअल हेलुसिनेशन फॉर श्योर. आई बी लाइक कि 6 months है, क्राइटेरिया क्या है, 6 months हेलुसिनेशन हो रहा था विजुअल, तुझे कुछ और भी सुनाई दे रहा था, ऑडिटरी तो नहीं है, थॉट्स कैसे है तेरे, तो आई ट्राई टू रैशनलाइज इट. सो आई थिंक इट्स अ हार्ड नो. But yeah, I'm a consumer of horror movies, so I like it for fun, but in reality, no, I don't think so. Okay, maybe we'll go to some horror place to experience it. Yes. Oh no, no, no. No, no. You said, I thought you're talking about a movie. Movie I'm ready to experience, not a real place though. Then I can't rationalize anything. Okay, so Afrin, thanks a lot for taking the time from your busy schedule. I know you're very busy, but yeah, thanks a lot. This has My been pleasure, very my fun pleasure. and super informative as well. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you.